أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. مسلمان بڑی دولت ہے کسی کو زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ مل جائے لیکن ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بغیر ہمیں درخواست کے بغیر اپلیکیشن کے اللہ تعالیٰ شانوں نے بھی اسپیکر جو فون مکی ایمان والے مسلمان اس کا ہم کو کیا ہونا چاہیے فخر ہونا چاہیے تو میں کون ہوں میں ارے بولو نا ہاں یہ فخر ہونا چاہیے میں مسلمان ایمان والا آتا ہے کتابوں میں جب تک کہ ایک ایمان ایک اللہ کہنے والا اس روح زمین کے اوپر ہوگا اللہ تعالیٰ شانوں دنیا اور آسمان کے نظام کو چلائے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم میں سے ایک کی وجہ سے اللہ پاک یہ پورا نظام چلا یہ ہمیں استحضار اس کو یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے کتنا بڑا نظام چل رہا ہے 800 کروڑ تو انسان ہے نا وہ گھڑی آتی ہے بیماروں میں روزانہ ایک ہر سیکنڈ کے اوپر کتنے زندہ ہوئے کتنے ہمارے 600 تھے 700 ہوئے 20 سال 800 تک پہنچ گئے 800 سے بھی اوپر ہوئے کتنے بچ رہے 800 کروڑ انسان ایسے اور یہ ساری مخلوقات الگ اب یہ سب کا وجود جو ہے کس کی وجہ سے صرف مسلمان کی وجہ سے تو میرا جی دوست یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس کا جتنا شکر ادا ہو سکے روزانہ ہمیں کرنا چاہیے 2 رکعت نماز اچھا دیکھو ابھی آپ کو اس وقت میں جو یہاں ایک خاص پروگرام عصری طلبہ اسٹوڈنٹس ان کو جوڑا ہے یہی ہے آپ میں سے ہی آپ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی پروفیسر بنے گا کوئی کہاں ہوگا کچھ پتہ نہیں ہوگا کوئی دکھتے تو سب چھوٹے چھوٹے کل آپ کے پاس آنے کے لیے ہو سکتا ہے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے میں کہاں ہے فلاں صبر کا کر کے ڈاکٹر صاحب تھے تو یہ جو عزیز دوست اللہ تعالیٰ شانوں نے ہمیں کیے جو آپ کو ایک علم کی لائن سے دنیاوی علم کی لائن سے آپ کو جو لگا ہے تو ہمارے حضرات ہمارے بڑوں کی ایک فکر ہے گی کہ ہم جس فیلڈ میں بھی جائیں جہاں کہیں بھی جائیں اس فیلڈ کے اندر جو ہے دیندار بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کر چاہے پھر آپ جس فیلڈ کے اندر بھی جہاں کہیں بھی چلے دیکھو دنیا کے بہت سارے فیلڈ آپ پڑھتے بھی ہوں گے کتابوں کے اندر جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں نئی چیزیں اور جو بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھو گے مسلمان یہ تو ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے لیکن آپ اگر اس کو اندر ہسٹری کے اندر جاؤ گے دیکھو گے تو وہ اسٹوڈنٹس وہ مسلمان جو علماء میں سے بھی بڑا علم حاصل کیا تب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی حضرات کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے یہ بچے جہاں کہیں بھی جس جگہ پر جس فیلڈ کے اندر ہے وہاں کیسے رہے دیندار بن کر اور اپنے فیلڈ کے اندر نمونہ بن کر تو اس کے لیے جو ہے سال بھر کے اندر جو ہے نا کچھ محنت ہوتی ہے اسکول میں ہوتی ہے کہ ہاسٹلوں میں ہوتی ہے کہ وہاں فکر کی جاتی ہے تھوڑی سی کارگزاری تھوڑی آ جائے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں تاکہ اپنے بھی انداز آ جائے کیا ہاسٹل بھی ہے کتنی ہاسٹل کتنی ہے ہاسٹل کوئی ایک ایسا کچھ جن کو معلوم ہو تھوڑا بہت ہاسٹل سے بچے آئے ہیں میڈیکل ہاسٹل سے بھی آئے ہیں اچھا اسلامی اسکول رہے گی نا آپ کے ماشاء اللہ تو ان میں سے کسی کی کارگزاری تھوڑی آ جائے کون سنائے گا کیا کرتے ہیں گے روزانہ
یا ہفتہ واری مہینے کی جماعت کچھ بنتی ہے یا کون سنائے گا؟ کوئی بھی ایک ہلکا آ جاؤ. ہمت نگر والے کہہ رہے ہیں. ہاں ہمت نگر والے کون سنائے گا؟ بھائی جو ہو رہا ہے اپنے کو ایسے سناؤ کیا محنت ہو رہی ہے آپ کی اسٹوڈنٹس کے لائن سے. آپ ہمارے ہاسٹل میں ہمارے ہاسٹل میں 35 اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں سے 20 اسٹوڈنٹ حافظ قرآن ہیں اور ایک عالم ہے. الحمدللہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ ہوتی ہے. اور باقی قرآن کی ان کا سماعت بھی سنا جاتا ہے فجر کے بعد. تعلیم کب کون سے وقت میں کرتے ہیں؟ عشاء کے بعد ہوتی ہے. عشاء کے بعد ملاقاتوں کی کوئی ترتیب ایسا کچھ ہوتا ہے ہاسٹل میں؟ نماز کی پابندی کے لیے بلاتے ہیں. جاتے آپ دعوت دیتے ہیں نماز محنت ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک. وہ اسکول والے اسکول والے کو سناؤ کارگزاری. کون سنائے گا؟ اسکول میں محنت تو ہو رہی ہے نا. کیوں خاموش ہے سب؟ اچھا اپنی مسجد کے اندر آپ کے یہاں کوئی جوڑ کی شکل یا ایسا کچھ ہوتا ہے نا مہینے میں 2 مہینے میں عصری طلبہ کا کوئی جوڑ؟ اچھا ابھی ویکیشن میں کتنی جماعتیں گئی ابھی گئی نہیں جماعت 17 جماعتیں گئی پورے سابر کا. آپ کے یہاں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ 1120 اسٹوڈنٹس. اس میں سے 17 جماعتیں گئی. 178 گئے. چلیے کون سے ہلکے سے زیادہ گئی ہے کہ ان میں سے کتنے 10 دن لگائے گا؟ ماشاء اللہ. دیکھا تاکہ کوئی کارگزاری سناؤ تھوڑی 10 دن میں کیا ہوا تاکہ ان سب کو جو ہے نا جو نہیں کریں گے ایک ہمت آئے گی کہ میرے کو یہاں یہ ہوتا ہے. کون سنائے گا؟ کارگزاری میں کیا بات ہے؟ کوئی ایسا تو ہوتا نہیں کہ بھائی جو ہوا ہے نا وہ سنا. آجا بیٹا دیکھو ماشاء اللہ. پھر ہم آپ کو کارگزاری سنائیں گے. 1-2 کارگزاری سنائیں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے کیا کر سکتا ہے. ہماری جماعت مسلسل بورسٹ کے اندر وقت لگا ہمارا. اس کے اندر ہم مرکز پھر جہاں پر گئے وہاں پر ہمیں پہلے دن وہاں پر رکنا ہوا. کہاں گئے تھے؟ بورسٹ. آنند. تو وہاں پر ہمارا رکنا ہوا تو ہمیں وہاں سے رخ ملا ہمیں کہ آپ کو یہاں سے 5-7 کلومیٹر دور ایک گاؤں وہاں پر جانا ہے آکاش اسٹیشن والا گاؤں. تو وہاں پر ہمیں بھیجا گیا اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے سب جو گھر تھے اس کے اندر سب مورتیاں تھیں. مورتیاں جو بتوں کی مورتیاں. تو وہاں پر کسی ایک ساتھی نے محنت کی تو وہاں سب کے گھروں میں سے مورتیوں کو نکالا گیا. اور وہاں پر مسلسل ایک مولانا تھے انہوں نے محنت کی تو اس کی وجہ سے ایک مسلسل اسٹوڈنٹ کی جماعت بھی وہاں سے گئی. اور وہاں کی مستورات کی تعلیم کے اندر بھی مسلسل 90 سے 100 عورتیں جاتی تھی تعلیم کے اندر. آپ لوگ نے کیا محنت کی؟ ہماری اپنی مسجد کے اندر وہاں ہم نے وہاں پر وہ بستی کے اندر جماعت کی شکل نہیں تھی. 2-3 ساتھی تیار تھے دوسرے ساتھی تیار نہیں تھے تو ہم نے ان سب پر محنت کی تو پوری
8 साथी की जमात हो गई। वो स्टूडेंट्स की हाँ, जमात। स्टूडेंट की मसजिद। माशाल्लाह, देखो वहाँ से कोई भी साथी एक भी बार निकला नहीं हुआ, तो वैसे साथी वहाँ से 10 दिन निकला। 10 दिन की जमात के। हाँ जी। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, आप लोग रोजाना क्या करते थे? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हाँ, रोजाना हम सुबह 4 बजे जैसे उठ जाते थे और सब साथी तहज्जुद में उठ जाते थे। थे? फिर तहज्जुद के बाद हम फजर की नमाज के से पहले तिलावत जो मामूल थे वो सब पूरा कर लेते थे। माशाल्लाह, देखो और फिर फजर के बाद जो वहाँ पर मुलाकात की तरतीब होती थी, उस तरह से वो साथी वहाँ से ले जाते थे, 2-3 साथी और बस्ती के अंदर मुलाकात करवाते थे। और उसके बाद आके हमारा मशवरा होता था और मशवरे के बाद हमारी फौरन मशवरे के बाद तालीम होती या 10 बजे जैसी तालीम होती थी। और 2 घंटे सुबह की तालीम होती थी मुसलसल। और उसके बाद जोहर के बाद जो बात होती थी, और जोहर के बाद खाना फौरन वाना हमें नहीं खाते? खाना खाते? कब खाते? जोहर से पहले हमारा खाना हो जाता है। खाते थे हो भाई, खाना खाते? जोहर के बाद हमारी तालीम होती थी, फौरन ही तालीम हो जाती थी। उसके बाद फिर तालीम के बाद थोड़ा साथी आराम कर लेते थे। उसके बाद असर के बाद गश्त होता था वहाँ पर। तो गश्त के अंदर एक जमात जाती थी और गश्त से आगे फिर गश्त मुसलसल मगरिब तक चलता रहता था। और मगरिब के बाद फिर आखिरी बात होती थी और उसके बाद साथी अपने जो मामूलात थे कुरान के वो सब पूरा कर लेते थे। देखो इनको पूरा 10 दिन कैसे लगे इनके, जबरदस्त। हाँ? सब एक एक चीज सुबह से शाम तक क्या करना थे सब बताए। आप लोग भी नियत करो ना, जिनका वक्त नहीं लगा सब लगाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या फायदा हुआ? हम वहाँ पर गए तो हमारे साथ सब स्टूडेंट ही थे और 3-4 महीने वाले साथी थे, लगे हुए आए थे। तो हमें वहाँ से जो साथी को कुरान का कुछ आता नहीं था, मखरज सही नहीं थे, तो हमने वो सब को सीखा और मखरज के साथ कुरान को सीखा। और वहाँ पर 1-2 सूरतें साथियों ने याद की और 10 सूरतों की सब साथी की 10 सूरतें मुझसे कंप्लीट हो गई। क्या नियत करके आए हो? इंशाल्लाह नियत तो है कि 4 महीने स्कूल के बाद 4 महीने लगाएंगे। हाँ, स्कूल के बाद हो, चालू पढ़ाई में नहीं निकल तो फिर तो अम्मा अब्बा कहेंगे ये क्या सीख कर आया, कभी चलो छोड़ो, वहाँ तो खाना पीना सब मिलता है। पढ़ाई जब अपनी पूरी हो जाए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी पूरी मुकम्मल तालीम हो जाए, उसके बाद में किसी मशगूली में लगने से पहले क्या करना है कि अपने 4 महीने उस दरमियान के अंदर अपने को जितना वक्त मिलता है उसमें, जैसे कि 10 दिन की जमातें बनी, बहुत सारे लोगों का जो कैसा होगा वो स्टूडेंट्स का वो लंबा वैकेशन मिलेगा, उसमें वक्त लगे। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। अच्छा, आपने कुछ ऐलान वैलान कुछ करा है? अब मैंने आखिरी बात भी की है। आखिरी बात नहीं करी तो थोड़ी कुछ बताओ ना, क्या बात करी? थोड़ी थोड़ी जरा सबको हिम्मत आ जाए। मोहतरम भाई दोस्त बुजुर्ग को अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही बड़ा करम है, ऐसा हुआ कि हमें ईमान जैसी बड़ी दौलत से नवाजा माशाल्लाह। कि ईमान का मिल जाना सातों जमीन और सातों आसमान से अफजल है। और आज हम सब ने इस ईमान की कीमत को भुला दिया कि आज हम सब ने दुनिया को हमारे दिलों के अंदर बसा दिए कि जिस चीज के पीछे मेहनत होती है उसकी कीमत हमारे अंदर आती है। कि जैसे हम सब दुनिया के पीछे स्कूल के पीछे मेहनत करते हैं तो उसकी कदर और कीमत हमारे अंदर आती है, वैसे ही हम हमारे दीन के पीछे मेहनत करेंगे, सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन के जैसी मेहनत करेंगे तो हमारे अंदर भी दीन का जज्बा पैदा होगा और ईमान का यकीन आएगा। अल्लाह कबूल। देखो ये कौन बोल रहा है? स्टूडेंट्स कह रहे हैं। कौन सी पढ़ते हैं आप? देखो 11 के अंदर पढ़ने वाला जो है ये कह रहे हैं। अल्लाह ताला शानो हम सबको कबूल करे। मेरा दिल दोस्तों को अल्लाह ताला शानो, वाकई में हमको ये जो नेमत दी, पहले अर्ज किया ना मैंने, ये बड़ी नेमत दी, वो फिर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, ये भी और बड़ी नेमत है। पहली उम्मत है तो यूँ समझो कि उनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती, 1000 साल 1500 साल ऐसी, और इस उम्मत को उम्र कितनी मिली है? 60-70 साल। अभी हम आपके सामने बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, चंद सालों की जिंदगी, लेकिन छोटी जिंदगी, लेकिन ऐसी कीमती और कितने अमाल ऐसे जबरदस्त दिए हैं अल्लाह ताला शानहू ने इस उम्मत को कि वो पिछली उम्मतों से कहीं आगे बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ी नेमत है हमारे पास। ईमान वाला बनाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और हमें सबसे और आगे बड़ी एक नेमत जो मिली है वो हमें उस मेहनत के साथ में निस्बत दी जिस मेहनत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए।
ये मेहनत जो है ना, ये काम किसका काम है? अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक ने ये नबियों वाला काम दे दिया है हमको। ये उस मेहनत के साथ में हमको अल्लाह ने निस्बत दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस वक्त, लेकिन अल्लाह ने इस काम के साथ। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो है, एक तो जो है हमारे बुजुर्ग कहते रहेंगे, और हम सब भी जो है अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक बात को कहते रहेंगे, एक अल्लाह। हमने और आपने जो कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तभी कहते हैं कि शिर्क यानी एक अल्लाह को एक मानना, ये हमारे अंदर रच पच जाती है। एक बुजुर्ग यूं कहते हैं कि अपने बेटे को नसीहत की उन्होंने कि शिर्क कभी मत करना जिंदगी के, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तेरे क्या हो जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अल्लाह एक है, पहले से है, अभी भी है और हमेशा वही रहने वाला है। ये अल्लाह का ये चीज हमारे अपने दिलों के अंदर बिठाना करना। और नफा और नुकसान का मालिक कौन हैगा? एक अकेला है। वही रोजे भी वही पहुंचाता है, वही भी खिलाता है, वही पिलाता है। देखो इस वक्त दुनिया के अंदर कितने सारे इंसान, इसके ना मैंने 800 करोड़ इंसान बस है। सबको कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है। और जंगलों के अंदर चले जाओ, कैसे कैसे बड़े बड़े जानवर, इन सबको कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। ये हमारे दिलो दिमाग के अंदर इस चीज को बिठाना, ये सब कुछ करने वाले कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने हमें वो कलमा हमें नसीब फरमाया और हमें जिंदगी का एक गुजारने का तरीका, तो दुनिया के अंदर तो बहुत सारे तरीके, लेकिन हमें वो तरीका अता फरमाया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर। उस तरीके के अंदर यूं कहा कि 100% कामयाबी। हमें खाना भी है, पीना भी है, चलना है, फिरना है, सब काम करने हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर अपनी जिंदगी को हम लिया है तो क्या हो जाएगा? ये यानी ये सारी चीजें इबादत के अंदर शुमार की जाती है, जिंदगी कामयाब होती चलेगी। आदमी खाए बिना चले नहीं चलेगा, लेकिन उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लिया है तो क्या हो जाएगा? वो उसका खाना इबादत बन जाएगा, पीना, हमारा सोना, हमारा चलना, हमारा फिरना। तो मेरा जी दोस्तों बुजुर्गों, मुझे और आपको अल्लाह ताला शानहू ने ये कलमा नसीब फरमाया। हमें एक यकीन अपनी जिंदगी के अंदर उतारना आएगा कि करने धरने वाली जात किसकी है? एक अकेले अल्लाह की। नफा भी वो पहुंचाते, नुकसान भी वही पहुंचाते। अब इन चीजों को समझाने के लिए बहुत सारी मिसालें दी गई है, हम खुद भी सब वाक़या तो बयान करते हैं कि भाई आग, आपका काम क्या है? जलाना है ना। लेकिन जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होगा आग जला नहीं सकती है। वाकयात है ना हमारे साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आपको आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या हुआ आपको? कि सलामती के साथ क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। पानी का काम क्या है? डुबोना। कोई भी चीज डालो, वजनदार चीज डालोगे तो क्या होगी? पानी डुबो देगी। लेकिन पानी उस वक्त तक डुबो नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। हमारे सामने वाकयात है, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया है। अल्लाह ताला शाम में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या कर दिए? 12 रास्ते कर दिए। फिरौन को क्या उसी पानी के अंदर क्या कर दिया? डुबो दिया। इससे क्या पता चलता है कि पानी के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं, कोई ताकत है जो हुक्म उसको दिया जाता है। तो ये मिसाल है, ये छोटी से लेकर बड़ी तक, बड़ी से तक जो कुछ भी है वो नफा और नुकसान पहुंचाने के अंदर किसकी मोहताज है? भाई बोलो ना, किसकी मोहताज है? अल्लाह के हुक्म की मोहताज। ये हमारे अपने दिल के अंदर बैठा मेरे अजीज दोस्तों। और दूसरी बात ये कि अजीज दोस्तों, हमें जो जिंदगी का मौका जो मिला है
एक बहुत थोड़ा मौका मिला है, 60-70 साल की जिंदगी में नहीं, उसमें से 15-17 साल बालिग होने तक के, 15 साल की उम्र तो बालिग होने तक की चली जाती है। हमारी असल जिंदगी जो हैगी वो मरने के बाद की है, जहाँ हमको हमेशा हमेशा रहना है, यानी वो कभी खत्म नहीं होगी। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इंफिनिटिव, नो एंड। इंफिनिटिव समझते हैं, उसका कोई एंड नहीं, वहां हमको जाना है। वो जिंदगी हमारी हमेशा हमेशा की, वो इन्फिनिटी वाली जिंदगी जो है कामयाब हो जाए। यहाँ जिस दुनिया के अंदर वो जिंदगी भी कामयाब हो जाए, तो ये हमको एक मौका दिया है, 60-70 साल की जिंदगी का जो मौका दिया है, इस 60-70 साल की जिंदगी के अंदर हम अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे, तो हम कहते हैं कि ये जिंदगी जो है ना, ये भी जो है अल्लाह ताला इसको जो है ना खुशगवार बना देंगे, है ना, ऐसी बेहतरीन जिंदगी बना देंगे, यहाँ भी कामयाबी मिल जाएगी। और फिर जैसे ही हमारी मौत आएगी, मौत आते ही कब्र की जिंदगी, क़यामत का मैदान, फिर वहाँ फैसला जन्नत और जहन्नम का, हमेशा हमेशा के लिए आदमी चला जाए। तो अल्लाह के हुक्म के अंदर जो है ना, सबसे अहम बात ईमान के बाद में वो कौन सी चीज है? नमाज। 5 वक्त की नमाज जो है अल्लाह ताला शानू ने मुझे और आप पर, यानी बालिग मर्द औरत के ऊपर क्या कर दिए कि फर्ज कर दिए। और कितने बड़े इनामात उसके। यूं आता हैगा हदीस पाक में यूं आता है, जिसका मफ़हूम और खुलासा है कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, उसके उस दिन के चलने से हुए, उसके हाथों से हुए, उसकी आंखों से हुए, उसके कानों से हुए, यहाँ तक कि उसके दिल के अंदर आए, सब गुनाहों को क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया। बल्कि अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला शानहू ने जिम्मेदारी लिएगी। किस चीज की जिम्मेदारी लिएगी? जन्नत की जिम्मेदारी। हदीस पाक का मफ़हूम है, खुलासा है जिसका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कह दीजिए, हमने इनके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, और हमने इनके लिए अहद किया है, तय किया है कि इसको अदा करेंगे तो हम उसको अपनी जिम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करेंगे। अगर उसकी वो जिम्मेदारी अगर वो अदा ना करे, चाहे हम उसकी मगफिरत करें, चाहे इसको हम कौन कह रहा है? ये कौन जिम्मेदारी ले रहा है भाई? कौन ले रहा है? अल्लाह। कौन? अल्लाह सारी चीजों का मालिक, अव्वल से अभी और आखिर हमेशा का रहने वाला। वो अल्लाह क्या कह रहा है कि जो ये 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, हम उसको हम अपनी जिम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो दुनिया के अंदर क्या होता है, अगर आपके इस इलाके का बहुत बड़ा सदर का छाया जिले का कोई आदमी, बहुत बड़ा आदमी यूं कहे कि भाई तुम फला काम करके आओगे, तुम्हें फला जिम्मेदारी लेता हूँ, या इस मुल्क का कोई बहुत बड़ा आदमी यूं कहे कि भाई तुम फला काम कर लो, तुम्हें तुम्हारा फला काम कर लो, हमको क्या हो जाता है? इत्मीनान हो जाता है, यकीन हो जाता है तो हो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, और अल्लाह ने इसको इस वक्त में दुनिया में ऐसा इख्तियार दिया है कि वो कहेगा उसके इशारे के ऊपर वो सारे काम बन जाएंगे। तो ये कौन कह रहा है? नमाज की पाबंदी के ऊपर अल्लाह ताला शानो कह रहे कि मैं जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो उम्मीद तो इंशाल्लाह ये सारे अहबाब, हमारे सारे स्टूडेंट नमाज की पाबंद होंगे, पाबंदी करते हैं ना सब। स्कूल के अंदर भी स्कूल का वक्त ऐसा होता है कि उसमें गफलत हो जाती है। तो ये अर्ज बात करी जा रही है कि घर से निकलो तो वुजू करके निकलो, ताकि जब वक्त ऐसा आए नमाज का वक्त, लंच का टाइम आता है, तो उस लंच के टाइम के अंदर फौरन जो है नमाज का वक्त हो तो पहले नमाज पढ़ो। और कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हमारी नमाजों को अच्छी तरह
खुशू और खुजू के साथ में, ध्यान के साथ, बल्कि अल्लाह ताला शानो तौफीक दे दे तो अपने मकाम के ऊपर भी जो है मस्जिद के अंदर आके जमात के साथ नमाज पढ़ने की तो कोशिश करें। कितना बड़ा अजर और सवाब है। जो कहते हैं कि एक नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए और एक नमाज बगैर नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। 3,54,34,432 नेकी का फर्क पड़ता है। एक नमाज को 27 गुना। अल-मुज़ा बुजुर्गों ने कहा, किताबों में लिखा है ना फज़ाइल अमाल के अंदर, एक आदमी नमाज पढ़े और उसको जमात के साथ नमाज पढ़े, 3,35,54,432 दर्जा उसका अल-मुज़ा यानी बढ़ जाता है। नमाज तो पढ़ ही रहे, नमाज को कैसे पढ़ना आएगा? जमात के साथ। और आदमी जब अपने घर से वुजू करके निकलता है, कोशिश करे बावजू रहने की, और घर से वुजू करके निकलता है तो हर कदम के ऊपर उसको जो है ना एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है। और यूँ कहा गया कि वो उसकी हालत वो ऐसी होती जैसे हज के लिए एहराम बांध कर गया। और जब वो मुसलमान जब मस्जिद के अंदर पहुंचा है, अल्लाह के घर में पहुंचता है, तो अल्लाह उसका इकराम करता है। कौन इकराम करता है? अल्लाह इकराम करता है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, यानी मस्जिद में पहुंचने वाला कैसा है? अल्लाह का मेहमान है। अपने घर में कोई मेहमान आता है तो इकराम करते हैं। ये जी दोस्तों, हम अपनी नमाजों को कैसा करें? कोशिश करें अपनी जमात के साथ पढ़ने की नमाज। स्कूल के अंदर वक्त हो रहा है, तो अल्लाह पाक आसानी करे, इस तरह से जो है वहाँ पर भी जो है ना जमात के साथ नमाज पढ़ने की हम कोशिशें करें। तो ऐसा इंतशार की कोई शक्ल या ऐसा नहीं, खामोशी के साथ में ऐसा इंतजाम हो जाए कि भाई नहीं, हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, ये अल्लाह के हुक्मों के अंदर से है। तो मेरा जी दोस्त उधर एक बात तो ये हो गई। और जी दोस्त, रोजाना जो है हम अपने यहाँ स्कूल के अंदर की अगर ऐसा निज़ाम है कि अपनी मस्जिद के अंदर तालीम जो है ना, ये इसके अंदर हम बैठने का एहतमाम करें। इसके अंदर जो है ना, इस तालीम के अंदर फज़ाइल अमाल जो है उसके अंदर अल्लाह ताला शानों की तरफ से एक किताब लिखवाई गई है, हमारे बुजुर्गों ने लिखी है कि उसके अंदर जबरदस्त फायदे नफे, सहाबा इकराम अज़मईन की जिंदगियां, उनकी औरतों की जिंदगियां, उनके बच्चों की जिंदगियां, उसके अंदर वाक़यात है। जब आदमी इस चीजों को पढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक जज्बा पैदा होता है अंदर करने का, तो वो ये थी जिंदगी। उसके अंदर नमाज के फजाइल है, नमाज के ऊपर क्या मिलेगा हमें, और नमाज मेरी छूट जाएगी तो क्या नुकसान होगा, वो चीजें हैं कि उसके अंदर अल्लाह का जिक्र करेंगे। हम स्टूडेंट्स के जमाने के अंदर भी हमने भी 10 दिन लगाए, मैं भी आपके जैसा ही स्टूडेंट्स ही हूँ। उस जमाने में हमें बराबर याद है कि एक मर्तबा हम तालीम के अंदर बैठे थे। वो तालीम का असर जो होता है, तालीम जो किताब जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बातें हैं। और आदमी बावजूद होता है ना, तो तालीम ये कहते हैं कि एक नूर है, और आदमी वजू के साथ वो भी नूर होता है। तो नूर क्या करता है? नूर को खींचता है। इसलिए कहते हैं कोशिश करें इस बात की, अल्लाह हिम्मत दे तो तालीम के अंदर भी हम बैठे तो बावजू हो, तो नूर को खींचता है। पढ़वा तालीम के अंदर बैठे हुए थे स्टूडेंट से, तो एक दूसरे को मुजाकरा होता रहता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 1988 की। कौन से साल की? 1988। तालीम में बैठे थे, एक मरतबा जो है ना वो अंदर फदाइल 3 हिस्से हैं ना तालीम के, कुरान की एक किताब का पढ़ना और 6 नंबर का मुजाकरा, तो उससे पहले जो है ना फदाइल कुरान में से पढ़ा जाता है। तो उसके अंदर जो हमारे एक साथी ने जो है ना ये पढ़ा कि वही जो फदाइल अमाल के अंदर, फदाइल कुरान के अंदर वो हदीस पढ़ी कि जो मगरिब की नमाज के बाद में सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद ये पढ़ता है तो उसका नाम जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले लोगों के अंदर पुकारा जाता है। कहाँ पुकारा जाता है नाम? जन्नत। और जन्नत में भी कौन सी?
जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले लोगों के अंदर नाम पुकारा जाता है। ओहो, तो हमारे साथी थे, हमारे स्टूडेंट्स के भी थे। तो वो दिल पर ऐसी लगी, अभी हमको चंद दिन पहले थोड़े वक्त पहले मुलाकात हुई, भाई खैरियत, एक दूसरे की खैरियत पूछते रहे थे ना अपने, क्या हाल चाल है, ठीक है, खैरियत है। तो बोले कि अल्लाह के फजल से उस दिन से अपने जो तालीम में वो पढ़ी थी ना, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह हदीद, ये 27वें पारे में, कि जो इसकी तिलावत करता है क्या तो उसका नाम जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले लोगों में पुकारा जाता है। बोले आज तक वो बाकी है। अल्लाह अकबर, तो कामयाब हो गया वो तो कहाँ पर पहुंचा हुआ है, डॉक्टर बने हुए हैं ये। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तालीम की भी इतनी अहमियत है। बाद मरतबा दिलों के अंदर ऐसी वो चीजें जो, क्योंकि है ही तालीम नूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली मुबारक बातें होती है कि दिलों के ऊपर क्या करती है, वो असर करती है। तो रोजाना हमारी इस बात की कोशिश हो कि हम जो अपनी मस्जिद के अंदर भी अगर वक्त दे सकते हैं तो तालीम, कभी कहाँ कोई जगह पर सुबह में होती है, कोई जगह शाम को होती है, कोई ऐसा वक्त हो तो जरूर 5-10 मिनट वक्त निकाल कर जो है ना अपनी तालीम अंदर के अंदर हम शरीक रहें। बैठेंगे सब तालीम में, उम्मीद करेंगे सब कर रहे होंगे, तालीम में बैठते होंगे। इसके अलावा जी दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हमारा जमाना जो है, ये पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इसके अंदर भी हमें एक जो है ना इसको संजीदगी के साथ में, अपने औकात की हिफाजत के साथ, यही दौर, ये जमाना ऐसा होता है, जवानी जो होती है ना उसके अंदर हमारी गफलत बहुत बढ़ती जाती है। इसको जो है हमें इस अपने वक्त को जो है सही उसूल करना, गफलतों से बचना, गुनाहों से बचना। चारों तरफ माहौल इतना गंदा हो गया है, तो आजकल तो सबको पता ही है, हर एक के पास में क्या चीज है। तो उससे जो है ना, पहले तो ये होता था अगर कोई गुनाह, कोई चीज खुले आम होती थी, पहले तो बड़ी बड़ी जगहें होती थी तो आदमी बचता था उससे, लेकिन अब तो कोने के अंदर बैठकर आदमी कोई कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। तो इन बवालों से और इन चीजों से भी बचने का जो है रास्ता, ऐसा नहीं इसको इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, लेकिन जरूरत के अंदर, लेकिन उसको जो है हमें सही इस्तेमाल करना आ जाए। तो ये हमारा जो है ना, ये वक्त, इसको सही गुजारने के लिए हमको ये माहौल के अंदर रखा जाता है। तालीम वगैरह के अंदर बैठेंगे, आप नमाजों की पाबंदी करेंगे, माहौल में रहेंगे, तो उन तमाम बुराई की चीजों से आप क्या कहेंगे, अल्लाह ताला शानों बचा देंगे हमको। और इन दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला शाह ने आपको वो ताकत, वो हिम्मत, वो कुव्वत, अभी ये जमाना जो है ना, ये पढ़ाई के जमाने के साथ साथ में इस मेहनत को करने, इसके बड़े फजाइल है। यानी स्टूडेंट्स जमाने के अंदर जो है ना, आदमी तसव्वुर नहीं करता इतने बड़े बड़े काम करते। हमारे एक बुजुर्ग है, अभी इस वक्त मौजूद है, उनको फाते फ्रांस कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है, फाते फ्रांस। यानी कैसे, वो पढ़ाई, यानी हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि पढ़ो भी और पढ़ाई के साथ में इस काम को, इस मेहनत को, इसको चिपका दो, इस मेहनत को, तो अल्लाह तुमको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। तो 1964 के अंदर जो है ना, वो फ्रांस पढ़ाई के लिए गए। क्या के लिए गए, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए बुजुर्गों के मशवरे से गए, पीएचडी करने के लिए गए वहां पर। तो वहां पर उन्होंने पेड़, लेकिन यही था कि यहाँ स्टूडेंट्स के जमाने के अंदर वक्त लगाया हुआ था, चिल्ला लगाया हुआ था, घर के अंदर तालीम हो रही थी, मस्जिद के अंदर तालीम, तो वो फिक्रों के साथ में वो किसी मुल्क में गए, तो वहां उस वक्त में कुछ नहीं था। एक आध मस्जिद कह रहे थे कि एक आध मस्जिद थी, उस मस्जिद के अंदर मेरी पढ़ाई के साथ में मैंने जो है ना ये तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। तालीम करता रहा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े थोड़े दिनों के अंदर एक लगा, 2 लगे, 3 लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने वेकेशन के जमाने के अंदर, जैसे अभी यहाँ निकलते ना अपने, हमने वक्त लगाना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई, अल्लाह ताला शानों ने जो है ना वो उस मुल्क के अंदर इस काम को, इस मेहनत को जिंदा कर दिया। आज देखो कितनी मसाजिद है, 8 से 10 हजार मसाजिद है, और पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन काम कौन है, जो कहाँ पर रहेगा, फ्रांस के अंदर है। और कौन दरिया बना, कौन बना दरिया, एक स्टूडेंट्स आज मौजूद है इस वक्त में, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब उनका नाम, अलीगढ़ के एक स्टूडेंट्स पूरे फ्रांस को जो है ना उसने बना के रखा।
तो वो ताकत, वो कुव्वत अल्लाह ताला शान मुझे और आपके अंदर, आप सबके अंदर रखी हुई है। वो सलाहियत है हमारे अंदर। अभी पिछले मरतबा एक मुल्क का हमने सफर किया, वहां गए हम, अजीब कारगुजारी स्टूडेंट्स की, यानी हैरान हो गए कि अल्लाह ताला शानू ने अगर ये जमाना, ये दौर हमारा जो है, अगर इसके अंदर हमने सही वक्त अपने वक्त को लगा दिया, काबू में कर लिया, तो कितना बड़ा काम हमसे हो सकता है। आपने क्यूबा नाम तो सुना होगा ना? क्यूबा सुना है ना? क्यूबा क्या है, कैसा मुल्क है ये? टापू होगा। अरे भाई स्टूडेंट सुना है, कैसा मुल्क है ये? नहीं मालूम? नास्तिक मुल्क है ये, अल्लाह को ही नहीं मानते वो। मालूम है कि नहीं आप लोग को? क्यों खामोश हो? मेरी बात समझ में आ रही? वैसा मुल्क, नास्तिक मुल्क। पिछला करीब, अपने करीब का मुल्क है, वहाँ जलजला आया था। जलजला समझते? तो भूकंप। धरती का भूकंप 10 एक साल पहले की बात है। बहुत भारी जलजला आया अपने करीब के मुल्क में। तो ये क्यूबा गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको हुकूमत को यूं कहा कि तुम हमको जो है 1000 स्टूडेंट्स दे। कितने स्टूडेंट्स दो? 1000। 1000 स्टूडेंट्स तुम्हारे उस इलाके के दे दो। उनकी पूरी जिम्मेदारी इनको डॉक्टर तक बनाने की, इनके खाने की, रहने की, पीने की, जितनी भी इनकी पढ़ाई की, सब पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो उसमें से बच्चे भी अलग किए और बच्चियां भी अलग की, वहां दे दिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर अभी जाकर आए वहां, पिछले 3 एक साल पहले। उन्होंने देखा कि यार अजीब माहौल है, हैरान रह गए वो, ये क्या बात है की। तो उन्होंने उनका जो डीन होता है ना, यूनिवर्सिटी का डीन होता है, उनसे मालूम किया कि भाई इतने सारे मुसलमान बच्चे हैं, ये क्या हाल चाल है। तो इतने खुश हो गए वो, उन्होंने कारगुजारी सुनी कि ये बच्चे जो है, ये जो आए हैं, इन्होंने हमारी सारी जितनी जिम्मेदारियां थी वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। फिर उन्होंने कारगुजारी सुनाई। ये जब शुरुआत में आए यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कुछ बच्चे थे दीनदार घराने से आए थे, तबलीगी घराने से आए थे, एक काम से मेहनत से लगे हुए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया। तो हमने देखा कि ये नमाज पढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज कर रहे हैं, क्योंकि वो मुल्क तो नास्तिक है, अल्लाह को ही नहीं मानते, और वहाँ अल्लाह की इबादत हो रही है, उसको देख रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो अल्लाह की नमाज के वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है। तो उन बच्चों को बुलाया उन्होंने कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो ये? तो बोले कि एक अल्लाह है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इसका इतना असर हुआ, तो उस मैनेजमेंट ने उनके लिए जो है एक कमरा अलग कर दिया, कभी इस कमरे के अंदर आप जितने बच्चे हैं या नमाज पढ़े। अब क्या हुआ, उस बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मौका दे दिया, वहाँ नमाज शुरू हो गई, बाजमात नमाज पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुल्क में, अपने मुल्क के दूर से आए थे, तो अब वेकेशन का जमाना आया तो क्या करेंगे, छुट्टी का जमाना आया, तो उन्होंने 3-3 दिन की जमात बनाई। तो केवल शुरुआत के अंदर 2 जमातें हमारी गई। एक जमात गई हम, वो जो स्टूडेंट्स थे, हमको मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने खुद ने सुनाया। एक देहात के अंदर जैसे अपने घूमने फिरने नहीं जाते थे, ऐसे हम 6-7 स्टूडेंट्स गए, एक इलाके में गए, वहाँ मेहनत करी, लेकिन गाँव के अंदर पहुंच गए तो क्योंकि मुल्क नास्तिक है, उनको पता ही नहीं है। तो जब हमने नमाज पढ़ी, और तो चारों तरफ से सबने घेर लिया, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, सब, ये क्या कर रहा है इसका। चूंकि वो पढ़ाई कर चुके थे, लोकल लैंग्वेज भी जानना शुरू हो गए थे, तो हमने अपनी जबान के अंदर, वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर वो सब चीजें उनको सुनाई। ओहो, इतने मुतासिर। अब थोड़ा थोड़ा वक्त जाता रहा, तो उन्होंने कारगुजारी सुनाते चले गए। उन्होंने यूँ कहा कि अभी इस वक्त में वहाँ काम होते होते 3000 के करीब जो है अल्लाह ताला शानू ने वहाँ क्यूबियन को जो है ईमान की दौलत दे दी। स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर भी उच्च अव्वल नंबर के ऊपर। अब ये होगा 10 साल पूरे हो गए। अब पिछले साल हम चिली गए थे, तो चिली के अंदर वो जो स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने वाले थे, वो हमारी मुलाकात हुई, तो बोले
70 डॉक्टर वहां से निकलकर ये करीब में आप पराग्वे करके एक मुल्क है छोटा सा साउथ अमेरिका के अंदर, तो 70 डॉक्टर वहां से बाहर निकले और वो सारी खिदमत दे रहे हैं और अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए वहाँ चिले के अंदर आए हुए हैं। तो मेरे जी दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह ताला शाम में आप अल्लाह ताला शाम में ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत रखी हुई है, ऐसी चीजें हैं, सलाहियतें रखी हुई है कि वो सलाहियतें हमारी जिंदगियों के अंदर आई, उसके लिए मेहनत है। जो वैकेशन के अंदर आपको वक्त लगाया जाता है, 40 दिन लगवाए जाते हैं, है ना, 4 महीने वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर, हम लोग भी जो है पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद में मशगूली के अंदर लगने से पहले 4 महीने अल्लाह के रास्ते में, ये हमारे आबिद भाई है ना, तुम्हारे, हम सब साथ में जमात में निकले हुए, वो पुराने हमारे साथियों में से, स्टूडेंट्स के जमाने में इनके साथ हमने वक्त लगाया, ये छुपे रुस्तम है इनके, बहुत सारी सलाहियतों के मामले। जी दोस्तों बुजुर्ग, तो ये आपके अल्लाह ताला शानों ने हमके अंदर, हमारे अंदर ये ताकत, ये कुव्वत दी है कि ये जो पढ़ाई का जमाना है उसको हम, उसमें पढ़ाई के अंदर भी खूब अच्छी तरह से हम पढ़ाई का अव्वल नंबर के अंदर है। देखो आप कहीं भी जाओगे ना, आप जो इसकी डिमांड होती है कि किसी चीज के अंदर मास्टर होता है, मास्टर यानी उसको क्या बोलते हैं, जो फील्ड भी हो, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर भी जो है एक अलग एक स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिस्ट के अंदर होते हैं तो उसकी डिमांड होती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हमारी पढ़ाई के अंदर भी हम ऐसे स्पेशल, ऐसे अच्छे अव्वल नंबर की मौका है पढ़ाई का, तो उसके अंदर जो है ना हमारे वक्त को बर्बाद बल्कि उसके अंदर अच्छी तरह लगे, और जब फुर्सत का वक्त है उसके अंदर क्या आएगा कि अल्लाह के दिन की मेहनत जहाँ हर मस्जिद के अंदर अब तो हो रही है। और हमारे बुजुर्गों ने ये तरतीब आसान अपने स्टूडेंट्स के जमाने के अंदर भी जो है हम अपने स्कूलों के अंदर, अपनी हॉस्टलों के अंदर इसकी जो है ना कहने, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नमाजों को हमारी करने की, यानी हम कहते हैं कि हम खुद अकेले नमाज नहीं, नमाज के साथ में नमाज की दावत देने वाले। अब नमाज के लिए जा रहे हैं, वक्त हो गया आएगा, अपने दोस्त को दावत दे दी हमने, तो कितना बड़ा अजर सवाब। हदीस पाक में आता है जिसका हुक्म खुलासा है फदाइल अमाल के अंदर, ये हदीस है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता है और नमाज की दावत देता है, कल क़यामत के दिन लोग तो हिसाब किताब में मशगूल होंगे और ये मुस्क के टीलों के ऊपर तफरीक करते हैं। तो कितना आसान है नमाज की दावत। भाई आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्त को कहते चल भाई थोड़ी देर लगेगी, आपने नमाज की दावत दे दी और वो आ गया, नमाज ही बन गया, नमाज की दावत दी, नमाज दावत देने वाले। तो मेरा जो दोस्तों इतना मुबारक काम दिया अल्लाह ताला शानों ने मुझे और आपको दिया है, और इसके साथ साथ में अपने अखलाक को बेहतरीन अखलाक उसके अंदर जो है ना नरमी इख्तियार, वो जोर शोर ऐसे देख करके नरम बन के ऐसे जिंदगी गुजारने का कि लोग हमको चाहें। तो मेरे दोस्तों ये सारी सिफातें अपनी जिंदगियों के अंदर लाने के लिए जो ये हमको कहा जाता है कि अपने औकात को लगाएं, और वक्त लगाने के अंदर कितने बड़े नफे, कितने बड़े फायदे, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि आज अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के ऊपर मुल्क के मुल्क खड़े हो, आपको पता नहीं होगा करेंगे कौन, अल्लाह करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी फिक्र हो जाएगी। अब ये आप हॉस्टल में जहाँ रहते हो, वहाँ हॉस्टल के अंदर जिस मस्जिद के अंदर रहते हो वहाँ पर जो है थोड़ी सी फिक्र आपने कर ली, तो न जाने इन्हीं के अंदर से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक मेहनत, एक काम है अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया है, इसको हम करेंगे ना तो अल्लाह ताला शानों जो है हमारी पढ़ाई हो। इससे क्या होता है, एक तो जो आदमी जब इस मेहनत के अंदर काम में लगता है ना तो गुनाहों से बच जाता है, माहौल के अंदर रहता है। देखो तो उस माहौल के अंदर क्या होता है, अच्छे माहौल में आदमी रहता है तो अच्छाई जिंदगी के अंदर आती है, और बुरे माहौल के अंदर रहता है तो बुराइयां जिंदगी के अंदर आती है। तो जब आदमी अच्छी तरह से रहते इस माहौल के अंदर, जैसे हमारे भाई ने कितनी अच्छी कारगुजारी सुनाई, थोड़ा सा उसने वक्त लगाया लेकिन एक माहौल के अंदर कितना असर लेकर आए। तो ये इसलिए जो है आपको वैकेशन के ज़माने के अंदर जो है ना ये कहा जाता है कि भाई जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है वो तो ये अव्वल पहले जो है ना कोशिश इस बात की करे कि हम जो है ना ये 4-4 महीने लगाएंगे। अब इसमें से ये बताओ, ये आपकी जो स्टूडेंट्स है उसमें से इस साल कौन फारिग होने वाला है जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, जरा खड़े हो जाओ तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इस साल आपकी पढ़ाई खत्म हो रही है,
تو اس بات کی آپ نیت کر لو, کوشش کر لو کہ پڑھائی ختم ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کسی مجبوری میں لگنے سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کریں گے تو ان کو کون لے کر الگ بیٹھے وہ صرف آ جاؤ. جو ہمارے حفیظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گے وہ ان کے پاس چلے جائیں, ہمارے ذمہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیں. کوئی مقامی ساتھی ہے کہ نہیں وہاں پر؟ آ جاؤ تھوڑا آ جاؤ. اب اس میں سے بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کا لمبا ویکیشن آتا ہے, سمر ویکیشن آتا ہے, تو ایسے کون سے اسٹوڈنٹس ہیں میرا تھوڑا